Hello students, today we are going to discuss the remaining questions of exercise 4.3 and question is question number 8. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. So in this question, जो ट्रेन है, एक ट्रेन 360 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो किसी यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। आगे बोला गया है कि अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती सो उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम है वो 1 आवर कम लगता। सो वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। So for this, let us choose that the speed of the train be x kilometer per hour. So time taken to cover 360 kilometer कितना हो जाएगा? This is 360 upon x. By using the formula, distance is equal to speed into time, and then is time is equal to distance upon speed. So distance is 360 and speed is x now. Now if the speed of the train had been 5 km per hour more, then the speed of train would be, अगर 5 km per hour more होती speed, so the speeds become x plus 5 km per hour. Now time taken to cover 360 km, which is equals to distance upon speed, so this is 360 upon x plus 5. Now according to question, अब यहाँ पर जो पहले टाइम लग रहा होगा this 360 upon x, ये ज्यादा होगा obviously, क्योंकि पहले स्पीड क्या थी? कम, और अभी स्पीड क्या है? ज्यादा। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इट इज गिवन दैट दिस इज 1 आवर. सो 360 upon x minus 360 upon x plus 5 is equal to 1, and we can take out 360 as common, so here the remaining value is 1 upon x minus 1 upon x plus 5, which equals to 1, and this becomes 360. So when we will take out the LCM, x into x plus 5, so this value becomes here is 1 into x plus 5, so this is x plus 5 minus, यहाँ पर होगा this is x into 1, so this value becomes minus x. Now this x and this minus x becomes 0, so here is 5, so this is 360 into 5 upon, multiply कर लेंगे यहाँ पर, this is x square and plus 5x, so this is 360 into 5 upon x square plus 5x is equal to 1, and when you multiply this 360 by 5, so you will get 1800 upon x square plus 5x plus x square plus 5x is equal to 1. अब यहाँ पर हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन व्हाट वी विल गेट, जस्ट सी, दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800. 1800 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, so this becomes x square plus 5x minus 1800 is equal to 0. Now on comparing this equation with the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, we will get a is equal to 1, b is equal to 5, and the value of c is equal to minus 1800. Now we apply the quadratic formula. So by applying the quadratic formula, we get this x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. And when we will put the values of a, b, c, we will get this is minus 5 plus minus 5 square is 25, minus 4 into a is 1, and c is minus 1800. So this becomes minus 5 plus minus 25 plus 7200 under the root, and this 7200 plus 25, so this becomes 7225, and the square root of 7225 is equal to 85. So this becomes x is equal to minus 5 plus minus 85.2. So एक बार हम यहाँ पर पहले प्लस कंसीडर करेंगे, एक बार माइनस. सो जब हम प्लस कंसीडर करेंगे तो the value of x is equal to minus 5 plus 85 upon 2. So this value becomes, this is 80 upon 2, and 80 upon 2 is equal to 40. Now when we will take out the we will consider हम minus, so हमें value मिल जाएगी this x is equal to minus 5 minus 85.2, this becomes minus 90 upon 2, and minus 90 upon 2 is equal to minus 45. अब यहाँ पर एक वैल्यू x की प्लस है और एक माइनस, और हमें पता है कि x जो हमने चूज किया है, दिस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन कैन नेवर बी नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर. Now we move on for the question number 9, and question number 9 is two water taps together can fill tank in 3.8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately.
फाइंड द टाइम इन विच ईच स्टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। सो यहाँ पर हम क्वेश्चन में दिया गया है कि दो वाटर टैप हैं जो किसी टैंक को 93.8 आवर्स में फिल कर रहे हैं। जो लार्जर डायमीटर का टैप है वो 10 आवर्स कम लेता है स्मॉलर जो टैप है उससे। ऑब्वियसली जो लार्जर डायमीटर का जो टैप होगा उससे पानी ज्यादा निकलेगा, जब वाटर ज्यादा फ्लो होगा तो ऑब्वियसली वो जो टैंक को वो कम टाइम में फिल कर देगा। सो स्मॉलर वाले से जो टाइम लगता है लार्जर को वो 10 आवर्स कम लगता है अगर वो दोनों सेपरेटली टैंक को फिल करने लगे। सो फाइंड द टाइम इन ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो अलग अलग टाइम बताना है। सो मैं मान लेते हैं अलग अलग सेपरेटली मान लेते हैं कि स्मॉलर जो पाइप है वो टैंक को फिल करने में x आवर लेता है। सो लार्जर वाला जो पाइप होगा वो 10 आवर्स कम लेगा, इसका मतलब उसको टाइम लगेगा x माइनस 10 आवर। सो मैं मान लेते हैं कि अगर ये जो टैंक है वो x आवर में कंप्लीट फिल हो रहा है और लार्जर वाला उसको x माइनस 10 आवर में फिल कर रहा है, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि आखिर 1 घंटे में जो पोर्शन है टैंक का वो कितना फिल। सो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर क्या हो जाएगा, कंप्लीट जो फिल हो रहा है वो x आवर में, तो 1 घंटे में कितना फिल होगा, सो दिस इज 1/x। और लार्जर पाइप 1 आवर में कितना भरेगा टैंक का पार्ट, सो दिस इज 1/x माइनस 10। क्वेश्चन में गिवन था कि जो दोनों पाइप हैं वो मिलकर के 93/8 आवर्स में फिल करते हैं, इसका मतलब 75.8 आवर्स लगते हैं उनको फिल करने में पाइप। सो अब हम ये ले लेते हैं कि 1 आवर में वो टैंक का कितना पार्ट फिल करेंगे, ठीक है। सो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ पाइप इन 1 आवर इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज 8/75। और ये दोनों जो पाइप हैं इसका मतलब एक भर रहा है कितना 1/x 1 घंटे में, दूसरा भरेगा 1/x माइनस 10 और दोनों साथ मिलकर कितना भर रहे हैं 8/75। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 10। सो दिस वैल्यू बिकम्स हियर इज x माइनस 10 एंड यहाँ पर बन जाएगा दिस इज प्लस। सो दिस इज 2x माइनस 10 अपॉन मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर दिस इज एक्स स्क्वायर एंड दिस इज एक्स माइनस 10 दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हेन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वी विल गेट, सो यहाँ पर हमको वैल्यूज मिल जाएंगी दिस इज 75 इंटू 2x माइनस 10 और दिस इज 8 इंटू एक्स स्क्वायर दिस इज 8x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 10x दिस इज माइनस की 80x। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर दोस्तों वैल्यू बिकम 75 इंटू 2x सो दिस इज 150x माइनस 75 इंटू 10 दिस इज माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 6x। सो ये जो वैल्यूज है 150x और माइनस 75 राइट हैंड साइड में ले आएंगे। सो द इक्वेशन बिकम्स 8x स्क्वायर माइनस यहाँ पर माइनस 80x है यहाँ पर माइनस 50 आएगा, सो दिस बिकम्स माइनस के 230x एंड माइनस 75 जो ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो वैल्यू बनेगी प्लस। सो दिस इज 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें ना हम अगर इसको क्वाड्रिक फॉर्मूला यूज करें तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सो हम यहाँ पर देखेंगे दिस इज 750 और मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ में, तो 750 इंटू 8 सो दिस वैल्यू बिकम्स 0 एंड दिस इज 0 कैरी 4 8 7 जब 56 एंड 4 दिस इज 600। अब हमें 6000 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको प्लस करने पर कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 230 मिले। सो हमें पता है कि यहाँ पर हम फैक्टर देख सकते हैं कि हमारे पास जो फैक्टर है वो 200 और हमारे पास मिल जाएगा कितना 30। सो 200 प्लस करने पर क्या मिल जाएगी वैल्यू 230। सो दिस इज 8x स्क्वायर माइनस 200 प्लस 30 इंटू एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस बिकम्स एट एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 330x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। 8x यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, सो वैल्यू बिकम्स दिस इज x, सो और यहाँ पर वैल्यू जाएगी x माइनस 25 माइनस 30 कॉमन लेंगे, सो दिस बिकम्स x माइनस 25। नाउ x माइनस 25 इज कॉमन, so the remaining portion is this is 8x minus 30 is equal to 0. Now this is the product of two function, either x minus 25 is equal to 0 or 8x minus 30 is equal to 0. So the value of x becomes 25 और मिलेगी 30/8। तो हम देखें कि x की वैल्यू अगर हम 30/8 लेते हैं तो जो स्मॉलर पाइप है वो फिल करने में टाइम लेगा 3.75 आवर्स
और लार्जर वाला पाइप इससे 10 आवर कम लेगा तो टाइम हो जाएगा नेगेटिव, और टाइम कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू चूज क्या करेंगे 25। इसका मतलब स्मॉलर पाइप 25 आवर्स लेता है टैंक फिल करने में, तो लार्जर पाइप कितना लेगा 25 माइनस 10, सो दिस बिकम्स 15 आवर्स। Now next question is 10. An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speeds of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the. सो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर कम लेती है किसी पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। ये डिस्टेंस जो है वो मैसूर और बेंगलोर के बीच में दिया गया है, और यहाँ पर हम जो ट्रेन के जो स्टॉपेज होते हैं उसके टाइम को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एंड इट इज गिवन दैट द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर। जो पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड है उस स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड। सो हमें यहाँ पर दोनों ट्रेन की ना एवरेज स्पीड बतानी है। सो हम ये चूज कर लेते हैं, लेट x किलोमीटर पर आवर बी द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। हमने मान लिया कि पैसेंजर ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। तब पैसेंजर ट्रेन को 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में टाइम क्या लगेगा? सो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड दिस बिकम्स 132 अपॉन x आर। अब एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, सो द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। So time taken by express train to travel 132 kilometer is equal to distance upon speed. So this is 132 upon x plus 11. अब यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों को जो टाइम है ना, यहाँ पर बोला कि if the then find the, यहाँ पर जो टाइम लगता है दोनों को 1 आवर कम लगता है। ठीक है, दिया हुआ है कि an express train takes 1 hour less, तो एक्सप्रेस ट्रेन को टाइम जो है वो कम लगता है, इसका मतलब जो पैसेंजर ट्रेन है उसको टाइम ज्यादा लगेगा। सो हम पैसेंजर ट्रेन ने जो टाइम लिया डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसमें से अगर हम एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम को माइनस कर दें तो दिस वैल्यू बिकम्स 1 नाउ। सो दिस इज 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। ऐसा हमने लास्ट एक क्वेश्चन किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो उसकी तरह से इस क्वेश्चन को हम आगे फर्दर करेंगे। 132 इज कॉमन एंड रिमेनिंग इज 1 अपॉन x, माइनस में 1 अपॉन x प्लस 11, और फिर यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 11, तो दिस वैल्यू बिकम्स x प्लस 11 माइनस x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। x कट जाएगा, वैल्यू इज 132 इंटू 11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 11x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड देन वी सॉल्व दिस। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 1452 के हम फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे जिसको माइनस करने पर हमें क्या 11 आए। सो ऐसे फैक्टर मिलते हैं 44 और 33। सो यहाँ पर जस्ट हम सब सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज हमको मिल जाएंगी x की, एज x इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज माइनस के 44 एंड x इज इक्वल टू 33। तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब माइनस 44 तो हो नहीं सकता। सो स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर, और इससे 11 किलोमीटर पर आवर क्या है ज्यादा है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। सो द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 33 प्लस 11, so this becomes 44 kilometer per hour. Now the next question of this exercise, the sum of the areas of two square is 468 meter square, and if the difference of their parameter is 24 meter, find the sides of the two square. दो कंडीशन दे रखी है, हमें मान लेते हैं कि जो स्क्वायर हैं उनकी साइड क्या है, एक स्क्वायर की साइड है x मीटर और दूसरे की क्या है y मीटर। सो एरिया जो होगा स्क्वायर का दिस इज x स्क्वायर, और इसका जो एरिया होगा दिस इज वाई स्क्वायर। इस स्क्वायर की जो पैरामीटर होगी, पैरामीटर इज नथिंग बट दिस इज द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। सो अगर स्क्वायर की हमें पता है ऑल साइड्स कितनी होती है, सेम होती है। अगर एक की x है तो
4 साइड्स का कितना हो जाएगा 4x, so this is the parameter of square and this is also the parameter of second square, this is 4y. So let the side of the two square is x meter and y meter, so their parameter of 4x and 4y and their areas will be x square and y square. Sum of the areas, इसका मतलब this is given that this is x square plus y square is equal to 468 and the difference of their parameter, so we can choose the difference as 4x minus 4y is equal to 24. So यहाँ से वैल्यू बन जाएगी, जब 4 हम कॉमन लेंगे, so this is x minus y is equal to 6 and the value of x is equal to y plus 6. x is equal to y plus 6 हम यहाँ पर पुट कर लेंगे. So when we put x is equal to y plus 6, so we will get the quadratic equation in y. So y में हमारे पास quadratic बन जाएगी. So y में quadratic बनी हमारे पास, this is y square plus 6y minus 216 is equal to 0. और यहाँ पर हम values of either we can apply the quadratic formula or factorization method. So यहाँ पर factorization method लगाया गया है, लेकिन आप quadratic लगाओगे तो आपको a का वैल्यू मिलेगा 1 and the value of b is equal to हो जाएगी this is 6 and the value of c is equal to minus में 216. So when you will apply the quadratic formula, so here the y is equal to minus b मतलब minus 6 and this is plus minus under root b square मतलब minus 6 square तो 36 minus 4 into में कितना 1 and in this is minus में 216 upon में 2a मतलब 2 into 1, so this is 2, so this becomes minus 6 plus minus under root this is 36 and plus, so this is 64 and 4 into 2 is 8, so upon 2, so 864 and 36 this is 900, so 900 का जो square root होगा this is 30, so minus 6 plus minus 30 upon 2. So एक बार हम वैल्यू लेंगे प्लस, so minus 6 plus 30, so y की हमारे पास वैल्यू जाएंगी, y is equal to minus में 6 plus 30 upon में 2, so 30 minus x upon 2 this is equal to हो जाएगा this is 24 upon 2, so the value of y is equal to हो गया हमारे पास this is 12. और जब माइनस लेंगे तो this becomes y is equal to minus 6 minus 30, minus 6 minus 30 is equal to minus के 36 upon 2 and minus के 36 upon 2, this value becomes minus के 18. So एक वैल्यू आ गई y की हमारे पास 12 और एक वैल्यू आ गई माइनस के 18. सो साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब माइनस 18 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब y की वैल्यू क्या है 12. अगर y की वैल्यू 12 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18. So the sides of the square are 12 meter and 18 meter. So like this we will complete this exercise 4.3. Thank you.